English with Devangan sir. Now, we are going through the writing section, and here I am with another topic. I have promised 10 days crash course. Notice writing already you have done. I believe you are making notes, practicing the question that I have given, and you can claim yes, 5 on 5, 3 on 3. So whatever question is asked in the examination, you will be able to do it. So without wasting time, today we are going to start with a poster writing. So whenever there is a poster is not the only thing for the point of view of examination. Nowadays, MHRD, Ministry of Home Resource and Development, is organizing many competitions in Diksha portal, mygovernment.com. Everywhere online poster making competition, drawing competition is going on. For the student, those who are studying 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, they are also participating. And on the other hand, for your personal use, and the most important thing, for the examination point of view, you need to make poster. So the very first question lies, पहले आप थ्योरी को समझिए. जब आप पूरी थ्योरी को समझेंगे, प्रैक्टिकली पोस्टर बनाना आपके लिए आसान होगा. The very first question, what is poster? Poster होता क्या है? What is the purpose of poster? What is the layout of the poster? पोस्टर हम कैसे बनाते हैं? एक एक चीज को बारीकी से ध्यान देंगे. आप अपनी कॉपी पे नोट्स बनाएंगे इन सब चीजों का, थ्योरी का भी और प्रैक्टिकल क्वेश्चन का भी. सो लेट अस बिगिन. व्हाट इज अ पोस्टर? आपका ध्यान बोर्ड की ओर. सो अ पोस्टर इज अ कार्ड, or you can say play card, carrying some announcement, advertisement. It is a kind of announcement. आप कुछ अनाउंस करें. ब्लड डोनेशन कैंप, आई डोनेशन कैंप, बी अवेयर ऑफ ड्रग्स, सेव वाटर. आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं, आप एडवर्टाइज कर रहे हैं. सो दैट इज कॉल्ड अ पोस्टर. अ गुड पोस्टर एट वंस कैचेस द अटेंशन ऑफ द रीडर. इट कैचेस द अटेंशन ऑफ द पासर बाय, जो भी वहां से गुजर रहा है, द वन हु इज रीडिंग इट. सो your poster must catch the attention of the passerby or the people, those who are reading it. It can be used to promote a product. आप किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, किसी इवेंट को प्रमोट कर सकते हैं. इवन द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल सच एज द पैट्रियोटिज्म, रिलीजन, क्रिकेट और व्हाट नॉट. मेनी थिंग्स आर देयर टू बी प्रमोटेड. हैविंग स्ट्राइकिंग डिजाइन, आपको उसका प्रॉपर डिजाइन मालूम होना चाहिए. And the best part I want to say you is have ornate artwork. It should attract the attention. Artwork का मतलब you should use bold letters. ड्राइंग जो आप बना रहे हैं, चाहे वो ह्यूमन एनाटॉमी बना रहे हैं या आप कोई भी डिजाइन कर रहे हैं. अब पानी की बूंद बना रहे हैं तो पानी की बूंद जैसे दिखे. आप आईज बना रहे हैं तो आईज जैसे दिखे, ब्यूटीफुल आईज लगे. यू शुड बी इन ए पोजिशन टू डू दैट. And that is, you can say, ornate artwork. Ornate, ornament से बना है, आभूषण, jewelry. That is the sense here. So let us see in the detail what is poster and what is the purpose of the poster. So, what is a poster? I'll read it for you. You can see on the board. Poster are placards displayed in a public place announcing or advertising something. Posters are notice, advertisement and invitations all in one. You can say all in one. Poster is an advertisement, it is a kind of notice, it is a kind of an invitation as well. So purpose of the poster, why do we make poster? Just to get marks in the examination? No, that is one purpose, but that is not the only purpose. So what is the purpose then? We can say the purpose of designing a poster is either to create social awareness about issues related to current problems and needs, or to advertise or even to extend public invitations and display notices. This is poster. I hope children it is clear to you. You will write it in your copy, you will read it, then you will understand it better. Now let us discuss main features of a poster. What are the main features of a poster? The very first thing where you should lay emphasis, layout. कि पोस्टर का आपका लेआउट कैसा होना चाहिए. लेआउट, आई होप यू अंडरस्टैंड.
लेआउट में बहुत सारी चीजें आपकी काउंटिंग होती है। 6 थिंग्स आई एम गोइंग टू टेल, यू कैन सी ऑन द बोर्ड, देख सकते हैं। मेन फीचर्स ऑफ अ पोस्टर, सबसे पहला विजुअली अट्रैक्टिव, आई कैचिंग, देखते से बहुत सुंदर लगना चाहिए। वाह यार कितना बढ़िया डिजाइन किया है। 5 on 5 एज फार एज एग्जामिनेशन इज कंसर्न, या आपको जो पर्पस है वो पर्पस पूर्ण होना चाहिए। टाइटल शुड बी सजेस्टिव एंड इट शुड बी कैची। ध्यान रखना, बहुत ज्यादा लिखना नहीं है आपको, नोटिस जैसे 50 शब्द पूरा भर देना है, नहीं। यू स्पीक थ्रू योर ब्रश, यू स्पीक थ्रू योर पेन विदाउट राइटिंग मच। थर्ड थिंग, यूज स्लोगन और यू कैन से जिंगल और शॉर्ट वर्सेस। No water, no line. Save water, save line. Save future. These are jingles. These are the verses that you can use. Sketch, or you can have simple drawing. If you are not good at drawing, simply you sketch the thing. And then letters of different size and shape can be used. आप दिवाली लिख रहे DIWALI, उसी को आर्टिस्टिकली लिख दीजिए, आर्टिस्टिकली लिख दीजिए लेटर्स को। एंड प्रोपोर्शनेट स्पेसिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, आप कितना गैप दे रहे हैं लेटर्स के बीच में भी और वर्ड्स के बीच में भी। ऑल दीज थिंग्स कवर अ लेआउट एंड दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग पोस्टर। आगे बढ़ते हैं, कंटेंट। कंटेंट में आपको क्या लेना है? 4 थिंग्स टू बी टेकन केयर इन कंटेंट। द वेरी फर्स्ट थिंग, द थीम और सब्जेक्ट ऑफ द पोस्टर। The theme and subject of the poster must be taken care, कि किस थीम पे आप बना रहे हैं, क्या आपका सब्जेक्ट है। डिस्क्रिप्शन और डिटेल एसोसिएटेड विद द थीम, जो थीम आप ले रहे हैं, जिस पे आप पोस्टर बना रहे हैं, वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। यू मस्ट बी क्लियर एट व्हाट यू वांट टू कन्वे टू द पीपल, दोज हु आर रीडर और दोज हु आर पासर बाई। एसेंशियल डिटेल लाइक टाइम, डेट, वेन्यू फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट मस्ट बी गिवन देयर। आप एक बहुत बड़ा दुकान खोल रहे हैं, उसकी ओपनिंग के लिए आप एक पोस्टर बना रहे हैं, तो कब उद्घाटन है, कब ओपनिंग है, कहाँ है, आपकी लोकेशन क्या है, ऑल दिस थिंग मस्ट बी मेंशन्ड इन इट। आई डोनेशन कैंप है, ब्लड डोनेशन कैंप है, वेन्यू कहाँ है, ब्लड डोनेशन कैंप कब से चालू होगा, ऑल दिस डिटेल, हु इज द ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी, these things must be very clear to the people. And the third one, essential detail like time, date, venue for an event that I have already discussed, and names of issuing authority, organization, that is a must activity. कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, उससे उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ती है। कोई भी तो ऑर्गेनाइज कर नहीं सकता। that must be an institute, a person or a committee, so that must be mentioned. अब बात करते हैं हम एक्सप्रेशन की। We'll talk about expression. किस प्रकार के एक्सप्रेशंस आपको देने हैं, क्या एक्सपेक्ट की जाती है आपसे। सो फ्रेज एंड स्लोगन इन परसुएसिव लैंग्वेज। व्हाट डू यू मीन बाय परसुएसिव लैंग्वेज? एग्रीइंग लैंग्वेज, जिससे लोग समझ सके आपकी बात को, आपकी बातों से एग्री हो सके। ऐसे वर्ड्स और थीम और वोकैबुलरीज आपको यूज करना है। क्रिएटिविटी इन टर्म्स ऑफ कंटेंट एंड डिजाइन, आपको क्रिएटिव होना है इन द टर्म्स ऑफ कंटेंट एज वेल एज डिजाइन, जो आप डिजाइन कर रहे हैं, जो आप स्केच कर रहे हैं। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन एंड सीक्वेंसिंग ऑफ द मैटर, जो कुछ भी पूरा मैटर है आपका नोटिस पोस्टर का, वो पूरा अरेंज्ड होना चाहिए। ओवरऑल इंपैक्ट शुड बी गुड एंड ऑब्जर्व वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट का तो विशेष ध्यान देना। 50 means not necessarily you will write all 50 words, because your design, your creativity also matters. So children, these are the theory part of poster. Now let's take some example, and with the example you will be able to understand better. एक लास्ट में मैं ब्रीफ करता हूँ, what are the points to be taken care, what are the points to remember, things to be remembered before you make poster. जल्दी जल्दी देखेंगे, 1 2 3 4 करके 7 points मैंने दिए हैं आपको, you can see on the board. The very first thing for you is use captions. आपको कैप्शन यूज करना है। सेकेंडली यूज स्लोगन्स, कैप्शन यूज करना है, दिमाग में सेट कर लीजिए। स्लोगन यूज करना है, दिमाग में सेट कर लीजिए। तीसरा लोगो, एम्ब्लेम या सिंबल आप यूज कर सकते हैं।
अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिंबल बना दीजिए आप। आपकी स्कूल की बात है तो स्कूल का अगर आप लोगो बना सके, एम्ब्लेम बना सके, दैट इज द बेस्ट पार्ट यू कैन डू। अगर आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन, आपका कोई क्लब है, आपकी कोई एजेंसी है, आप उसका लोगो बना दीजिए। आपने देखा होगा इंग्लिश में देवांगन सर का एक लोगो है जिसे आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। सो दैट लोगो टेल्स, यस ये तो देवांगन सर का चैनल है, ये तो आपका चैनल है। यस, दिस इज द चैनल वेयर यू लर्न इंग्लिश। सो दैट वे logo, emblem and symbol must be used. The pictures and diagrams and sketches should be the essential part of your poster. फिर से रिपीट करता हूँ, picture, diagram and sketches should be a part of your poster. Now message, जो आप मैसेज दे रहे हो उसे 3 भागों में बांट दीजिए। एक, शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत ज्यादा मैसेज, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट दैट देयर इज अ ब्लड डोनेशन कैंप। नो माय डियर, ब्लड डोनेशन कैंप, इतना पर्याप्त है। डोनेट आईज, इतना पर्याप्त है। अब ऐसा नहीं कि देयर इज अ कैंप वेयर यू कैन डोनेट आईज एंड व्हेन यू विल डोनेट आईज सम ब्लाइंड पीपल विल बी एबल टू सी। नो, पूरी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। सो व्हाट आई सेड, शॉर्ट एंड स्वीट एंड टेलीग्राफिक लैंग्वेज। नो, व्हाट यू मीन बाय टेलीग्राफिक लैंग्वेज? पहले के जमाने में जब ये व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम नहीं हुआ करते थे, मेल नहीं हुआ करते थे, तो हाथ से चिट्ठी लिखी जाती थी। वो हाथ से लिखी चिट्ठी 1 महीने 2 महीने में पहुंचती थी। तो ऐसे समय में टेलीग्राम की व्यवस्था थी, पर वर्ड पर लेटर चार्ज किया जाता था। तो बहुत ज्यादा कोई अर्जेंट मैसेजेस होते थे वो भेजे जाते थे। एंड एवरी लेटर यूज्ड टू बी चार्ज, मतलब बहुत ही शॉर्ट और स्वीट आपको वर्ड्स यूज करने हैं। कंटेंट की बात करते हैं, इट शुड बी इंफॉर्मेशन एंड डिटेल मस्ट बी गिवन। All the information and details must be given. Statistics and figures, अगर आप कोई फिगर यूज कर सकते हैं, कोई आंकड़े यूज कर सकते हैं, वो जरूर दिए जाने चाहिए। एंड स्पेशलिटी, क्या स्पेशल होना चाहिए आपके पोस्टर में? द वेरी फर्स्ट थिंग, ब्रेन टिकलिंग एंड आई कैचिंग। ब्रेन मतलब आपको सोचने पे मजबूर कर दे, आपकी आंखें उसे देखने पे मजबूर हो जाए, दैट इट शुड बी। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर, मैंने 2 वर्ड में सारी बातें कह दी। It should strike your mind and should attract your eyes. दिमाग और आंख दोनों पे असर होना चाहिए। That is called poster and open-ended question. आप इसे एक open-ended question से भी आप समाप्त कर सकते हैं। एक प्रश्न, क्या आप इसमें भाग नहीं लेंगे? क्या आप अपने देश से प्यार नहीं कर? You can put up a question like and you can end the things like that. So that's all children for poster making. Now we will go ahead with some of the examples. You can see a beautiful poster with very less of words and lots of sketches. I hope you like it. मुझे बताने की जरूरत नहीं कि इसका क्वेश्चन क्या है, आप क्वेश्चन खुद ही बना लीजिए कि ड्राफ्ट अ पोस्टर, डिजाइन अ पोस्टर फॉर आई डोनेशन कैंप। देखिए कितना सुंदर सा बीचों बीच लिखा हुआ है। आप कोऑर्डिनेशन देखिए, दोनों आंखें बनी हुई है लेफ्ट एंड राइट में, उसके बीचों बीच लिखा हुआ है डोनेट योर आईज फॉर द ब्लाइंड। एंड अब उसके बाद बहुत ही बोल्ड लिख दिया है हेल्प देम सी द वर्ल्ड। एक हिंदी में एक बहुत अच्छा स्लोगन था, यदि मरने के बाद भी आप देखना चाहते हैं डोनेट योर आईज। फनी में मैं बात करें, मरने के बाद भी अगर व्हाट्सएप और फेसबुक चलाना चाहते हैं तो अपनी आंखें दान कर दो, तो वो आंखों से देखता रहेगा और व्हाट्सएप और फेसबुक चलाएगा। सो डियर फ्रेंड्स, हियर इट इज, लेट्स कम। ये लिख मत देना एग्जामिनेशन में, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। सो कम बैक। सो डोनेट योर आईज फॉर द ब्लाइंड एंड हेल्प देम सी द वर्ल्ड। दस योर आईज विल सी इवन आफ्टर यू विल बी नो मोर। उसी चीज को अच्छी तरीके से कह दिया है। फॉर मोर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट योर नियरेस्ट आई बैंक, आई स्पेशलिस्ट। नीचे लाइन लिख सकते, इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, इशूड बाय सो एंड सो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भोपाल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खरगोन, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अजमेर, व्हाटएवर यू वांट टू से। सो दिस इज वन डिजाइन ऑफ पोस्टर। होप थिंग्स आर क्लियर? यस, वाटर ड्रॉप देखते से ही आपको समझ में आ गया काहे का पोस्टर है ये? यस ऑफ कोर्स यू आर राइट, सेम वाटर। देखिए ऊपर कैसे वार्निंग और एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, मतलब सोचने पे मजबूर हो जा रहे, विस्मयादिबोधक चिन्ह है। वाटर इज द एसेंस ऑफ लाइफ। आप फॉन्ट साइज देखिए, कलर देखिए, पहले ब्लू में लिखा हुआ है वाटर लेवल गोइंग लो। पूरा ग्रामर अंग्रेजी की सुधारने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ग्रामेटिकली लिखने की जरूरत नहीं है आपको। टेलीफोनिक लैंग्वेज में ग्रामर अवॉइड किया जाता है। वाटर लेवल इज गोइंग लो नाउ अडेज,
पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इज एम आर की जरूरत नहीं है. वाटर लेवल गोइंग लो डेंजरसली ईयर बाय ईयर. साल दर साल पानी का स्तर बहुत नीचे जाते जा रहा है. अप्लाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सेव वाटर. रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमोट करता हुआ ये नोटिस है. अब 2 पॉइंट लिखा है. डोंट लेट रेन वाटर रन वेस्ट, प्रिजर्व इट इन टैंक एंड ponds. Save this gift of nature for your coming generation. आने वाले फ्यूचर के लिए आप उसे सेव कीजिए. सेव वाटर एंड सेव लाइफ. इशूड बाय नेशनल एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जयपुर. जो भी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है. So this is the second example we can say. Let us take the third one. In the air it is nowadays. Every channel you must have seen Bollywood actor, actresses, this that. Drug abuse. Don't hug the drug. It will suck your blood. Drug, blood. राइम स्कीम बना दिया. आप कुछ भी स्लोगन अपने मन से बना दीजिए. और स्मोकिंग सिगरेट्स एंड देन वन इंजेक्शन, दीज आर द सिंबल्स ऑफ ड्रग. और वो खतरा वाला जो आपने बना दिया है स्केलेटन, दैट शोज इटसेल्फ डेंजरस. नाउ लीव ड्रग एंड लिव लाइफ. कितना सुंदर है. देखो LEAVE लीव और LIVE लिव. लीव ड्रग एंड लिव लाइफ. ड्रग एडिक्शन एंडलेस अफ्लिक्शन. ब्यूटीफुल राइमिंग. इशूड बाय द ड्रग कंट्रोल सोसाइटी, सदर मार्केट, न्यू दिल्ली. मैं अलग अलग प्लेस यूज करूं, जयपुर, न्यू दिल्ली, ताकि आपके दिमाग में सेट हो. आई होप this one you got clear. Now suppose your school has got election. It is a democratic country, you know. कॉलेजेस में होता है ऐसा. आप सचिव के पद के लिए, सेक्रेटरी के पद के लिए, प्रेसिडेंट के पद के लिए खड़े होते हैं. यू आर राहुल सिंह, अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट. आप अपने आप के लिए पोस्टर डिजाइन कीजिए, वोट मांगिए. या आप राहुल के दोस्त हैं, राहुल के लिए पोस्टर डिजाइन कीजिए. देखिए कैसे पोस्टर बनाया. एक फनी सा वो बना दिया है कि राहुल सिंह पकड़ के बोल रहा है. क्या बोल रहा है? Let your voice be heard. Get out and vote for Rahul Singh. बाहर आइए, come out of the things and vote for Rahul Singh. Rahul Singh के लिए वोट दीजिए. Who only who deserves your vote and support. केवल वही एक ऐसा है जो आपका वोट और सपोर्ट डिजर्व करता है. एज प्रेसिडेंट स्टूडेंट काउंसिल, स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट होने के लिए वही लायक है. और नीचे उसकी थोड़ी सी स्पेशलिटी लिख दी हमने. अ ट्रू फ्रेंड, फाइन ओरेटर, बहुत अच्छा वक्ता है. गुड स्पोर्ट्समैन, इंटेलिजेंट, सपोर्टिव, रिसोर्सफुल एंड अबव ऑल अ गुड वर्कर फॉर स्टूडेंट्स वेलफेयर. देखिए कितने कम शब्दों में. आप फॉन्ट साइज देखिए, बोर्ड का कलर देखिए. फॉर लिखा है नीचे, फिर राहुल सिंह बड़ा हो गया, फिर ओनली डिजर्विंग फिर से छोटा हो गया, एज का ए कैपिटल हो गया, प्रेसिडेंट कैपिटल लेटर्स. लर्न ऑल दिस थिंग्स. डोंट सी द आंसर, जस्ट सी हाउ इट इज डिजाइन. बैलेट पेपर बनाए गए हैं और बैलेट बॉक्स बनाया गया है टू अट्रैक्ट द अटेंशन. अर्थक्वेक. नाउ आई विल रिमेन साइलेंट फॉर 30 सेकेंड. यू रीड इट इन माय टोन. जिस तरीके से मैं पढ़ रहा हूं आप पढ़ने की कोशिश कीजिए. warning, warning, warning. Then earthquake, the deadliest hidden enemies of men. जरूरी नहीं आप एज इट इज ऐसा लिखें, आप अपने मन से इसे चेंज भी कर सकते हैं. Now dear children, time for you. I've given you 5 examples and now posters for practice. Watch the video twice, thrice. See those posters and on the basis of them prepare these. See how many I have given to you. Draw a poster to create awareness about the harms of drinking. Harms of drinking. Drinking, you understand, drug abuse. Draft a poster on circus show going to be held in your city. Draft a poster on cruelty to animal. Shoot the animals with the camera, not by gun. एक स्लोगन हो गया ये कि अगर आपको शूट करना ही है तो कैमरे से शूट करो भाई, बंदूक से नहीं. So children, here you can see what you can do is you can pause the video, take a screenshot, note down in your rough copy and then fare it out.
Do maximum practice of it. And the last one, home task. करना ये सब आपको घर पे ही है. And I hope these videos are very clear to you and you would be in a position to attend poster making. Children, this is the second writing skill that we have done. It is useful, I said you, for the examination point of view, 11th and 12th in the board examination it is asked, but no less useful for 6th, 7th, 8th and 9th and 10th class children, because day to day life you appear in many of the competitions, you participate in many of the competitions, and you will surely be benefited. So keep watching, keep sharing it with your friends across the country. If you feel it is useful for them, do share with them. Keep watching English with Devananda. Thank you. Have a nice day.